नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। मध्य प्रदेश के कुशाभाऊ सभागार में किसानों के लिए सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना लागू की गई है और इसी अवसर पर चीफ ACS मनु श्रीवास्तव ने इन्वेस्टर्स के प्रश्नों और संशय का विस्तार से जवाब दिया है। रिपोर्ट पेश है ब्यूरो प्रमुख अर्जुन कुमार द्वारा। I represent Investor Energy. We have been doing close to 150 megawatt of KUSUM projects across 3 states, but MP is a very special case. Really thank the leadership team over here to bring in such level of transparency and investor-friendly terms for the KUSUM project. Non-DCR was a very big issue, and thanks for hearing to our needs and making this tender feasible for almost everyone. I have a couple of questions where I need clarity and few requests which are putting up. In terms of clarity, so the first one which you mentioned across the tender, the term reasonable rates is being used, and as sir also rightly pointed out, so just wanted to understand, sir, right now you have all the data points to ascertain whether the rate is reasonable or not. So isn't it prudent to give upfront what the reasonable rate is? And some sort of discussion or negotiation would not take place. Okay. Now, when the rate reasonability is referred, what it means is that, let's say we get a rate of 6 rupees. Let's say you would understand it's not a reasonable rate, would not. Now, we would not to say what a reasonable rate would be, because that is like a signaling to say that we expect you to bid around that rate. So we would not like to say that. However, you can have data points of the various other such contracts that have been there by the state. So definitely, like we had at certain tender of a 105 megawatt project in plug and play mode in December. We agree that that is not a relevant data point, because that was a plug and play project. That was 105 megawatts, so the scale is much bigger. So that is not a relevant data point. But we can see other earlier successful tenders of KUSUM C that have happened in the state. Those can be the rates that can be considered. However, in those, I would like to say that there was one tender which was held, wherein it was for on a what is called a consolidated or cluster basis. That I would say can be disregarded, because that is to understand. मतलब लोग को समझ में आया, काफी क्लियरिटी आ गई है कि किस तरीके से चीज़ों को करना है. But my request is this, sir, the date है वो सिर्फ यहाँ से 10 days बच रहे हैं. तो जो प्रीवियसली लोग हैं ठीक है, बट जो नए एंटरप्रेन्योर हैं और जो आपके इस प्रोसेस में हाईलाइट होना चाह रहे हैं और जिस तरीके से अभी आप लोगों ने इसकी कैल्कुलेटली ऐड किया तो लोगों को अवेयर आया. बट वी सी दिस टेंडर काफ़ी पहले से निकला था, बट हम लोगों के नॉलेज में नहीं था. बट आफ्टर दैट द वे यू MP में जिस तरीके से एड सर्कुलेट हुए तो 10 days तक काफ़ी शॉर्ट पीरियड है, मतलब टू बिड आउट द प्रोसेस. तो आई रियली अप्रिशिएट इन केस सर इस पर अगर आप मतलब जब आप लोग इतना कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इस पर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको देना चाहिए. ये रिक्वेस्ट है, बाकी का द कॉल इज फॉर द मैनेजमेंट. फार्मर्स को रख रहे हैं, तो क्या इनको प्रायोरिटी देंगे? तो ये सब मध्य प्रदेश के प्रायोरिटी जो बिल्कुल दी जा रही है, प्रायोरिटी ये दी जा रही है कि उनसे नेटवर्क या टर्नओवर का कोई उनसे शर्त नहीं मांगी जा रही है. बट उसके बाद जो भी लोग आ गए कमरे में, मतलब तब उनमें कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं है. उनको पात्रता के लिए उनको टर्नओवर या नेटवर्क की कोई शर्त नहीं है उन पे, जो इन्वेस्टर या पे है, कोई कंपनी पे है. बट एक बार जो बिड कर रहा है उसमें हम मात्र रेट के आधार पे करेंगे. मैं अलॉटमेंट की प्रक्रिया में जो एक पोर्शन मैंने क्लैरिफाई नहीं किया था वो क्लैरिफाई कर देता हूँ. सवाल के माध्यम से इसका जवाब आ जाएगा. 3 किस्म के टाइम्स हैं जो पॉसिबल हैं इस अलॉटमेंट की प्रक्रिया में. पहला टाइम ये है कि
2 सबस्टेशन पे सेल रेट है, तो कौन से सबस्टेशन को प्राथमिकता मिलेगी? क्योंकि सबस्टेशन के अलॉटमेंट का जो ऑर्डर है वो इस बात से डिटरमिन हो रहा है कि L1 किसका कम है। अगर दोनों का L1 बराबर है तो उस सबस्टेशन को अलॉटमेंट में प्राथमिकता मिलेगी जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। क्योंकि वो कम रेट है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी को उस रेट के ऊपर अलॉट करना चाहूँगा। तो एक 10 मेगावाट और 5 मेगावाट के सबस्टेशन में 10 मेगावाट विल गेट प्रायोरिटी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हम सबस्टेशन के अंदर की बात करें तो एक सबस्टेशन में 4 बिडर्स ने एक ही रेट डाला हुआ है, उनके बीच में कोई नेटवर्थ या टर्नओवर के बेसिस पे भेदभाव नहीं है। एक ओपन ट्रांसपेरेंट लॉटरी करके उनमें से L1 का निर्धारण कर लिया जाएगा। सो अगर वो सेल्फ डेवलपमेंट मोड और डेवलपर मोड दोनों के लोगों ने लेट से 1.5 रुपए के रेट डाल के रखे हुए हैं, लॉट निकलेगा और जिसका नाम आ जाएगा उसको अलॉटमेंट हो जाएगा। क्योंकि कई बार जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है वो ये है कि वोल्टेज कम होने के कारण इन्वर्टर ट्रिप होने की स्थिति आती है। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो GIZ से जो कॉन्टेक्ट किया है, जो एग्रीमेंट किया है, GIZ एक जर्मन संस्था है जो हमें इसमें सपोर्ट कर रही है। GIZ एक टीम अपॉइंट कर रही है हर डिस्कॉम में, जिसमें मेरे ख्याल से एक मैनेजर होंगे हर डिस्कॉम में और 2 और अधिकारी होंगे। तीनों हमारे डिस्कॉम में इस प्रकार से 3-3 अधिकारी होंगे जो हमारे हर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे, न सिर्फ उसके इस्टेब्लिश करने में और कमीशन करने में, पर अगर उसके इस तरह के चैलेंजेस आते हैं कि अगर उसका अवेलेबिलिटी ग्रिड होने के कारण परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसमें भी ये हमें सपोर्ट करेगा। उसके अलावा हम लोगों ने इसको एनालाइज किया है, GIZ ने भी इसमें किया है एनालाइज और मैंने भी इसको एनालाइज किया है कि जहां जहां पे इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, अभी तक हमारा ये नहीं पहला प्रोजेक्ट हो रहा है, कुसुम A और कुसुम C के प्रोजेक्ट्स पहले भी उसका एनालिसिस किया है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स के कुछ COF का 22% तक COF हाई रहा है, पर कुछ का कम भी रहा है। बट जहां पर कम रहा है उसके मोटे तौर पे 2 कारण हैं। मैं शायद रेजा से भी कहना चाहूंगा, उससे पालीवाल से वो भी इस बारे में बात करेंगे आपने। मोटे तौर पे मुझे लगता है 2 कारण हैं। एक कारण तो बेसिकली रिले का जो ऑपरेशन है वो ठीक से ना हो पा रहा है। रिले के बारे में, अगर रिले के बारे में करीबन 5 लाख से ज्यादा खर्च नहीं आएगा पर डिस्कॉम में। इसके बारे में हमारी मीटिंग चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे भी हुआ है और वहां से निर्देश मिले हैं कि जहां जहां पर ये प्रोजेक्ट लगेंगे वहां पर डिस्कॉम्स को करीबन 10 लाख रुपए दिए जाएंगे कि वो अपने जो रिले का जो प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है उसको सही करें, जिससे कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हो ना आए। मतलब जिसमें दिक्कत आती है कि जो लोड फीडर निकल रहा है उसमें अगर ट्रिपिंग होती है तो उसकी वजह से जो हमारा सोलर फीडर है वो ट्रिप नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं रेजा से रिक्वेस्ट करूंगा वो SOP में अलग से ही बात करेंगे, पर एक महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में ही बात करें। सेकेंड इशू है वोल्टेज कम होना, उसके कारण भी इन्वर्टर्स जो है कभी कभी ट्रिप होते हैं। तो उसके बारे में जो रिएक्टिव पावर के बारे में जो MD साहब ने बताया, उस पर हम जो इतना जोर दे रहे हैं उसका कारण ये है कि वो एक सॉल्यूशन है जो खुद आपके पास है, बट हम लोग अभी तक उस सॉल्यूशन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मतलब आप रिएक्टिव पावर को जब आप इंजेक्ट या एब्जॉर्ब करते हैं, जिसका MD साहब ने जिक्र किया था, जिसका डिटेल में आपको प्रोफेसर पालीवाल को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप वोल्टेज को कम और ज्यादा करने का जो की है वो आपके हाथ में है, बट अभी तक आप उस की को इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो उसके बारे में प्रोफेसर पालीवाल को बताएंगे। तो दूसरा मुद्दा वोल्टेज कम होने का है। तो सबसे पहले मैं रजनीश से कहूंगा कि आप जो थोड़ा सा रिले के बारे में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण होता है और उसके लिए डिस्कॉम्स क्या करने का सोच रही हैं, थोड़ा सा बताते हैं, फिर स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।